जय हिंद स्टूडेंट, मैं हूं नागेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं L1 कोचिंग का ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम L1 एस्पायर ऐप पर। और यहाँ पर आपको ढेर सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वीकली एंड मंथली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, एवरीथिंग इज हियर। एंड इफ़ यू डू लाइक दिस कंटेंट, दिस प्लेटफॉर्म, and it's help you to become scientific, logical. You can suggest someone else, you can you have the privilege to help someone else in having such a quality education platform. So for that they have to search L1 Aspire on Google, and they have to download it from Play Store or App Store, and then according to their batches they will start this one. Okay, now in the last class we have discussed about percentage, ppm, ppb and ppt. Do you remember all these? Hello guys, do you remember all these? Parts per billion, parts per trillion, parts per million, and percentage, mole fraction, density, molality. Okay, yeah, so molality is what? Molality is as we have seen in the last class, very easy. Molality, just focus on the term that number of moles of solute in 1 kg of solvent. Okay, great. Jyoti, Ujjwal, Shivani, है ना, Monica, everyone. So yes, okay, Bharat. Okay, now so molality is moles of solute in 1 kg of solution. No, not solution but solvent. So how many moles of solute in 1 kg of solvent is called molality. Okay, so we have seen number of problems. Let's start with this problem बच्चों. For 8% of weight by weight, and in some books it's 8% by weight, or you can say 8% weight by weight H2SO4 solution. Calculate mole fraction of H2SO4 and molality. Just do it fast, and time is 2 minutes. Come on everyone, you have to solve it in 2 minutes. It's a very easy, so that we can check whether you have gone through those content, whether you comprehend those contents, yeah, and have practice at your home or not. Let's start. So for 8% weight by weight H2SO4 solution, calculate mole fraction of H2SO4 and molality. Okay, now time is start. Yeah, everyone come on, place your answer. I have given 2 minutes. Arey yaar, ho Hanu, I love you yaar. हो Hanu ने तो यार he has just given answer in within 10 seconds. Great, wow, great बेटा, बहुत अच्छे। क्या बात है शिवांगी, you all are very smart, intelligent and disciplined. Viva, good. So why I have given 2 minutes yaar? Oh, I forget that you guys are wonderful. You guys are amazing child, eh? So 8% weight by weight solution, calculate mole fraction and molality. Okay, so I'm just although I have contracted the time from 2 minutes to 1 minute because of you all have done beautiful. Let's see, let's just discuss it. Mole fraction, ये भारत कह रहे हैं सर, इट्स हैज बीन डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. नो वे, कोई बात नहीं, हमने क्लास में डिस्कस किया, दोबारा फिर डिस्कस कर रहे हैं, और यही सवाल परीक्षा में आ जाएगा. किसमें? जेईई मेन में, नीट में, एडवांस में. तो ठीक है ना, हमको घुल जाना है, हमको रम जाना है, हमको धून में आ जाना है, नहीं? दैट्स ब्यूटीफुल. ओके, लेट्स सी व्हाट विल डू. मोल फ्रैक्शन, हम लोग इतनी जल्दी आंसर कर रहे हैं, लगेगा हम लोग नकल मार रहे हैं. कितना मोल है? 8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड means it will be 8 by 98 moles, and it is out of mole fraction. So 8 by 98 moles of sulfuric acid, and it's a 92 by total 92 by 18 moles of water.
Okay, it's a mole fraction of H2SO4. Now we have to calculate molality. We just placing here answer. Yes, so easy. 8 by 98 moles of this much moles of sulfuric acid in 92 gram of the solvent. But we have to find molality means out of 1000 gram of solvent or out of 1 kg of solvent. 1 kg solvent में या 1000 ग्राम solvent में कितना मोल सोल्यूट है. सो 92 ग्राम में इतना है तो व्हाट विल बी इन 1000 इट्स मोललिटी. यस, वाओ, ग्रेट. तो ये मैंने बड़ी गंभीरता से आपको बातें बताई. अभी कल देखो नीट का परीक्षा हुआ है. यू माइट ऑल अवेयर्ड अबाउट दिस. एंड यू नो NCERT से बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा. मेरी बात ध्यान सुने, आपने क्या बोला? NCERT से बाहर एक भी सवाल, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन. और कई लाइन सीधे NCERT उठा कर आ गया. अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता हूँ, अब मुझे सुनने को मिलता है कि JEE मेन में और नीट में, नॉट इन JEE एडवांस. JEE एडवांस में भी 50% तक कवर करता है, बट उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको इंटरपोलेट करना होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा उसको सीखना होता है. यस, तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई बता दे कि आपको डॉक्टर बनना है, मैं कहा, या JEE मेन में अच्छा करना है, मैं कहा, वट एवर स्ट्रीम इन विच आई बिलोंग्स टू. सो यू नो NCERT से बाहर एक सवाल नहीं पूछता है, तो भाई मैं तो NCERT चाट जाऊंगा. और मुझे लगता है कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग भी मेरी तरह ही हो सोच वाले, या मुझसे कहीं थोड़ा अच्छे हो. थोड़ा मुझे जलन भी होती है. आई जस्ट नो जेलस अबाउट दैट कि आप लोग मुझसे अच्छे हो. मैं आपकी उम्र में था तो इतना अच्छा नहीं करता था यार. तो फिर आप लोग भी NCERT चार्ट मारोगे. यस, डू इट ऑन रेगुलर बेसिस. आप ये तय करो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, यू प्रिपेयर योर ओन नोट्स सेपरेटली. Read 1 page, 2 page and prepare its notes and just talk with yourself. I mean कि आपने 2 पेज पढ़ा, उसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, कैसे ये डेटा वो डेटा, हर छोटी बड़ी चीज़ को पूरा याद कर डालो. या और आज से शुरू हो जाओ और फिर देखो क्या होता है, धमाका. इतना अच्छा स्कोर होगा. इट इज़ कॉल्ड यू नो ओरिएंटेड स्टडी पैटर्न. या सो यू आर स्टडिंग, यू आर डिसिप्लिन. और डिसिप्लिन का मतलब भी तो ये बच्चों ना कि हम वही काम करें जो अनुशासित तरीके से हमारे लिए आवश्यक है. तो चलो फिर लग जाओ. आप इंजीनियरिंग, मेडिकल दोनों बच्चों को मैं बोल रहा हूँ. और जो हम लोग शीट देते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए इफेक्टिव. और एक बात और, मैं हमेशा से देखता हूँ, जो बच्चे सवाल बनाते हैं, खूब बनाते हैं, उनको डाउट होता है. अपने डाउट को या तो वो कॉपी देख करके या नोट्स पढ़ के क्लियर कर लेते हैं, और नहीं क्लियर होने पर टीचर से पूछ के क्लियर करते हैं. तो अगर आप दोस्तों में, या तो सवाल बनाना बहुत ज़रूरी है, और फिर DP और जो बुक्स हम रेफ़र करते हैं, और फिर आप जो है उस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद अटक जाओ तो दुखित ना हो. यहाँ ना अटके हो, ये तो अच्छी बात है. सोचो अगर ट्राई नहीं करते, एग्जामिनेशन हाल में अटक जाते, कितना बुरा होता. नहीं, यहाँ तो मौका ही मौका है, मौके ही मौके नहीं. यस, जस्ट ट्राई टू सी द सॉल्यूशन, थियरी, योर नोटबुक, योर रिकॉर्डेड वीडियो, एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स. एंड अल्टीमेटली इफ still it is not solved, you can just communicate with us via WhatsApp group. Yeah, that's what कुछ बच्चे करते हैं और उसका आंसर ही भेजते हैं. आप मेरी बात समझ गए ना. तो NCERT की वाट लगा दीजिए. और मैंने देखा क्या है, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको एक बार बोल दो कि ये काम करने पे ये होने वाला है, वो उस लाइन को पकड़ लेते हैं. हम खुद ही भूल जाते हैं. मैं कहता हूँ ये तुम क्यों पढ़ रहे हो, कि सर आपने बताया था सवाल इसी से आता है. तो फिर दिल गदगद हो जाता है, अरे यार गजब है. तो आप फॉलो कर रहे हो ना, करोगे ना पक्का, बिकॉज यू ऑल आर वेरी डिसिप्लिन एंड आई लव ऑल ऑफ यू. ओके, कम ऑन. ये अश्विन गिरी जी कह रहे हैं, सर कौन सी बुक अच्छी है केमिस्ट्री के लिए? बेटा अगर आप फिजिकल की बात करोगे तो मैं कहूँगा कि फिजिकल के लिए आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है. अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के लिए आप सिर्फ NCERT और हम जो क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व करो, और प्रीवियस ईयर का पेपर खरीद लो. एक किताब है प्रीति गुप्ता करके हैं अरिहंत में, वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 30-40 साल के मिडिल क्वेश्चन दिए हुए हैं. राइट, तो उस क्वेश्चन में उन्होंने खूब सारे सवाल दिए हैं, तो मिडिल सारे सवाल वहाँ से मिल जाएंगे, प्लस हमने दिया, सफिशेंट है. अगर आप JEE मेन और IIT की तैयारी करते हो तो RC मुखर्जी
या फिजिकल केमिस्ट्री बाय पी बहादुर, दो में से कोई एक ले लो या दोनों ले सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक अभी मैं चूँकि यही पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं ये डिस्कस किया। ऑर्गेनिक की बातें करनी होगी तो आपको बताऊँगा बाद में, ऑर्गेनिक बातें करेंगे, ठीक है। चलिए कमान हम इसकी बात करते हैं बच्चों। ये हमने कर लिया, मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे फॉलो करोगे और मैं पूरा भरोसे में भी हूँ। कम ऑन नाउ लेट्स सी। अब टुडे लेट्स सी अ न्यू कंटेंट, इट इज़ मोलैरिटी। Molarity, it's not molality. Molarity is represented by capital M, and you all might know that molality is represented by small m. So molarity is capital M. Okay, so what it is? No, in my childhood I was writing, I was just cramming, I just try to memorizing its formula. No, so bad yaar. Oh ho, मैं क्या करता था, I was writing its formula, you know. But now I am thinking कि मोलैरिटी क्या है, तो we just say मोलैरिटी कितना मोल सोल्यूट है 1 लीटर सोल्यूशन में। हाँ, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट है। अच्छा ये मोलैरिटी है क्या 1 लीटर सोल्यूशन में? कैसे निकालेंगे? चाहे जैसे निकालो। वाई वी जस्ट नीड टू क्रैम द फार्मूला यार, चाहे जैसे कर लो। हम क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, या जिसका पूछा जा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है सोल्यूट, या जिसका भी पूछा जा रहा है। मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम, हाँ ये बहुत जरूरी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यू कैन से कि 1000 ml में, आउट ऑफ 1000 ml कितने मोल सोल्यूट है। ओके, इन 1000 ml 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स सोल्यूट हैं, कितने मोल्स सोल्यूट हैं। ओके, इट्स अ मोलैरिटी। तो यू नो ये मैं ml की बात क्यों कर रहा हूँ, मेनी टाइम्स वी हैव बीन गिवन द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर। सो इफ वी आर जस्ट वेरी मच फेमिलियर एक्वेंटेंस विद दिस वन, सो वी कैन यूज इट। या 1000 ml सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट है, और इन 1 लीटर सोल्यूशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट। दैट्स ओके नाउ। सो आई थिंक वी विल डू इट। लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम बच्चों। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन। सो आई थिंक यू ऑल कैन डू इट, जस्ट डू इट इन 45 seconds. It's very easy, it's very easy. Time starts now. Urea, do you know urea? NH2CO NH2. NH2CO NH2. Yes, just do it. Calculate molarity of 6% weight by volume urea solution. Come on, guys. हेलो, आंसर दो भाई बच्चों। सो आई थिंक आई शुड डिस्कस फर्स्ट। ओके, सो लेट मी डिस्कस। हाँ, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, देन ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? 6% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब समझ गए ना। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट इट। सो 100 ml सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया है, ये बात हमको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। मतलब 100 ml solution incorporates 6 gram of urea. Is that 100 ml ऑफ सोल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया? ये मैंने ऐसे ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस के लिख दिया। तुम जानते हो कि मैं इसको अगले 2 सेकंड में आंसर लिख दूंगा। यू नो हमको निकालना है कितना मोल सोल्यूट है, तो 6/60 मोल सोल्यूट है। इतना मोल सोल्यूट है 100 ml में, तो 1000 ml में मतलब 1 लीटर में कितना होगा, इंटू 1000 कर दिया, इट विल बी मोलैरिटी। बोलो यस नो बच्चों। क्या किया हमने? 100 ml में इतना ग्राम यूरिया है, ग्राम नहीं चाहिए, वी नीड मोल। इसका मोलिकुलर मास है 60 से डिवाइड कर दिया, इतना मोल है 100 ml में। तो हाउ मेनी मोल्स विल बी इन 1000 ml? इतना मोल है 100 में, तो 1000 में कितना होगा? इट्स मोलैरिटी। ओके, इज इट ईजी बच्चों? समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो यस नो। इज दैट ईजी? समझ में आ गया है ना?
यस बोलो, यस नो। हाँ, ये क्या है 0.1 और ये 10, तो ये 1 आ जाएगा, 1 मोलरिटी। तो अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया होगा तो हमको इतना सब नौटंकी करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, 6 ग्राम यूरिया है तो 6/60 मोल यूरिया हुआ इन 100 ml, तो व्हाट विल बी इन 1000 ml, दिस इज मोलरिटी। ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, नहीं आया अर्णव बेटा, फिर देख लो। देखो इसमें क्या हुआ, हमें सवाल में कह रहा है कि मोलरिटी क्या है, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 6 ग्राम सॉल्यूट है, क्या, यूरिया। तो 6/60 मोल हो गया इन 100 मिलीलीटर। तो हाउ मच विल बी इन 1000 कर दिया हमने, है ना बेटा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके अर्णव, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 6% वेट बाई वेट यूरिया सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.04 ग्राम। सुनो, यहाँ पे हमें क्या दिया है, 6% वेट बाई वेट एंड यहाँ डेंसिटी दिया है। तो वेट बाई वेट और डेंसिटी का यूज करके हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे और मोल निकाल लेंगे, और मोल और वॉल्यूम निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली मोलरिटी आ जाएगी। यस, जस्ट डू इट। चलो अब मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को 1 मिनट का। इस सवाल में थोड़ा डिफर किया ना, हियर वी हैव टेकन 6% वेट बाई वेट एंड 1.04 डेंसिटी दिया। तो जब भी हम वेट बाई वेट कहेंगे तो हम फिर डेंसिटी भी लेंगे। ओके, चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ बच्चों, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। कम ऑन बच्चों। 5 4 3 2 1 0, टाइम इज ओवर। सो यू नो हनु और शिवानी ने कर लिया, बाकी लोग भी करने वाले होंगे या कैलकुलेशन में अटके होंगे। यस आई बिलीव। नैन्सी ने कर लिया, मोनिका ने कर लिया, वेरी नाइस। सो यू नो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि हम लोग हमेशा आइडिया बिल्डअप करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ थॉट। और हम किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, वेदर वी बिलोंग टू इंजीनियरिंग और मेडिकल, ना एक आइडिया बन जाता है ना, तो स्पॉन्टेनियसली वी कैन जस्ट प्लेस द आंसर, स्पॉन्टेनियसली अपने आप आ जाता है। लेट्स सी, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। सो इफ यू नीड द वॉल्यूम तो वी कैन से मास बाई डेंसिटी। यस, तो ये बात हमको दिमाग में, जहन में जाए, घुस जाना चाहिए। तो देखो क्या कर रहा है, ये डेंसिटी किसका है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डेंसिटी ऑफ, लिखा है ना, यूरिया सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दैट मच, इट्स अ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यस, सो बच्चों हम कहेंगे, हमको निकालना है मोलरिटी। ओके, कम ऑन एवरीवन। हम कहेंगे 6 ग्राम है, मतलब इतना मोल सॉल्यूट है। हमने सॉल्यूट का मोल निकाल लिया, 6 ग्राम है, मतलब 6/60 मोल सॉल्यूट है। कितने वॉल्यूम में, क्या सॉल्यूशन का क्या है, क्या वो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्या ग्राम नहीं यार, वॉल्यूम बताओ। क्या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, इसको डेंसिटी से भाग दिया 1.04, सो इट्स अ ml में आ गया। तो इतना मोल है इतने ml में, तो हाउ मच विल बी इन 1000 ml। वाओ, यस, इट्स टू कूल। हमें इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, जैसे अपने घर जाते हैं हम लोग ना, कई बार किसी रास्ते से होते हुए तो घर का रास्ता याद नहीं करते, हम गाना गाते रहो, मोबाइल पे लोग बात करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, घर अपने आप पहुंच जाते हैं। बल्कि होता तो ये कुछ और करते रहते हैं, कहीं और जाना है, नहीं सोचेंगे तो घर ही पहुंच जाते हैं, बिकॉज वी आर इन फ्लो। So that the same thing will happens with you if you
if you know have a impression of these things on your subconscious mind. ओके सो क्या कहेंगे, इतना मोल्स है इतने वॉल्यूम है, तो व्हाट विल बी इन 1000 वॉल्यूम. एक सब गुणा भाग कर लेंगे हम लोग, तो 0.1 आ रहा है साफ साफ, है ना बच्चों. ये ऊपर चला जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये 1.04 मोलरिटी दिख रहा है बहुत ही आसान तरीके से. और आप सभी लोगों ने सही किया, बहुत अच्छे, ग्रेट, मज़ा आ गया. आप लोग जब सीखते हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है. तो ये क्या एग्जामिनेशन में आप कम टाइम में कर पाओगे. यहाँ देखो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि एग्जामिनेशन में फोड़ दो जल्दी से. कहोगे 6/60 मोल्स है, कितने वॉल्यूम में, 100/1.04 में, तो हाउ मच विल बी इन 1000. ये लिखते ही फिर आंसर कर दोगे 1.04 मोलरिटी. इतना जल्दी करना है, 4-5 सेकेंड में बस. ओके नाउ छोटी मोटी चीज़ें मैं और डिस्कस करता हूँ, फिर प्रॉब्लम कराता हूँ आपको. आपको पता है ना कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ सोल्यूट वी जस्ट मल्टीप्लाई मोलरिटी बाई वॉल्यूम. यस बच्चों, डू यू नो दिस. सो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम. लाइकवाइज लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज हमें कहा कि 0.02 मोलरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है. बच्चों ध्यान समझना आपको, एंड ये हमने लिया है 10 लीटर. सो व्हाट विल बी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, वन प्रॉब्लम इज दिस वन. तो क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. मोलरिटी इज 0.02 इंटू 10, वॉल्यूम लीटर में है ही, 10 से गुणा 0.2 मोल्स हो जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों. कितनी आसानी से बोल दी गई ये बात ना. मोलरिटी इज इक्वल, मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. तो हमें कह रहा है कि बहुत आराम सीखो कि 0.02 मोलरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम वाटर, LIMEWATER. हाँ, तो क्या बताओ, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओहो ग्रेट, शिवानी, आजम, विभा, बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग समझते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कितना मोल होगा, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर लिया. लेकिन बच्चों अगर मैं ये पूछूं कि कैलकुलेट, आप लोग जल्दी बताना मुझे, तो सबको आंसर करना है. कैलकुलेट मोल्स ऑफ OH माइनस आयन. OH माइनस आयन्स का मोल बताइए. ओहो दिव्या, सोनल, अमन, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही अच्छे. या नो लेट्स सी हियर. तो बताओ इसमें इन दिस सॉल्यूशन मोल्स ऑफ OH माइनस, व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ OH माइनस. जस्ट डू इट एवरीवन, कम ऑन. व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ OH माइनस. So you know what we are seeing here, 1 mole of calcium hydroxide possesses 2 moles of OH minus. Yes, are you seeing here? Is it clear to you? 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस के 2 मोल्स हैं. वाओ, तो इसका मोल जो होगा 2 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा. क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को. तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आप किस चीज़ को सर्च कर रहे हो, क्या आंसर है आपका, आपसे क्या पूछा जा रहा है. यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, बट इफ़ यू हैव टू आंसर द OH माइनस तो हमने ऐसा कर लिया. सो 2 इंटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 0.2, सो आंसर विल बी 0.4 मोल्स. ओहो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे. सौरभ, आरती, बहुत बढ़िया. तेजस, वेरी नाइस बच्चों, ठीक है ना. अच्छा एक बात और बताना चाहूँ मैं आपसे, अगर मैं ये पूछ लूँ, अब भाई बताओ जरा, आप ही लोग बताओ, इस सॉल्यूशन में कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एवरीवन कम ऑन बच्चों, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आपको पता है ना कि कैल्शियम के एक एटम atomic mass of calcium is 40. So by this information you have to calculate the mass of calcium hydroxide. Yeah, just do it everyone, just do it in 30 seconds.
नॉट मोर देन दैट। 30 सेकंड में करो भाई, मार मार के भूत बना दूंगा नहीं करोगे तो। चलो जल्दी करो, सबका आंसर आना चाहिए बच्चों। व्हाट विल बी द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दिस सॉल्यूशन? गुड 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 हनु, आजम, ज्योति। लेकिन सबका सही तो होगा नहीं, सबके अलग अलग उत्तर हैं। कोई बात नहीं, ट्राई करना अच्छी बात है। What will be the mass of calcium hydroxide in this solution? So now time is over. So let's see it. So we have calculated its mole यार, तो mole into molecular mass, mole into molecular mass will be total mass. भाई एक मोल का मास देखो हमको दिया है, दिस इज मास ऑफ 1 मोल, सो वी हैव 0.2 मोल्स, सो मास विल बी 1 मोल इंटू 0.2। ये कितना आएगा? ये तो 40 हो गया, ये 16 17 दूनी 34 ना बच्चों, 34 कितना हुआ ये 74 से गुणा कर दो इसको, ये कितना आ जाएगा 2 चौके 8 आ गया और 2 साढ़े 14 आ गया, 14.8 आ रहा है यार, ये तो है ना बच्चों। ठीक है, ब्यूटी राय, सोनल, सौरभ सबने सही किया है। तो अगर हम लोगों ने मोल्स कैलकुलेट कर लिए देन वी कैन इजीली कैलकुलेट मास। विल यू डू? चलिए एक सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। चलो चलो चलो, देखो लोग कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हम सीख जाते हैं तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री या हमारी चुटकी में, मुट्ठी में नहीं यार, मुट्ठी मेरा बहुत बड़ा है, चुटकी में, चुटकी बजाया और सॉल्व। इसलिए मैं टाइम दे के अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, यतीश वर्मा, वेरी नाइस बेटा। चलिए फिर सवाल ट्राई करते हैं हम लोग तो, और मेरे पढ़ाने के बाद घर पे जाके क्वेश्चन ट्राई करना है। कहाँ से? एलवन एस्पायर पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत सारे सवाल हमने दिया, वो ट्राई करिए। आरसी मुखर्जी जेई मेन वाले और नीट वाले, प्रीति गुप्ता अरिहंत की प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस खूब दिया उन्होंने, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, सफिशिएंट क्वेश्चन है, वो करना है बस। और जो मैं कहूँ वो करना है बस। रोज़ एनसीईआरटी पढ़ने के हैबिट में आ जाओ, सिलेक्शन तुम्हारा मैं कराऊँ, गारंटी लेता हूँ यार, गारंटी। मैं पढ़ा दिया और सवाल परीक्षा में ना बने, क्या मजाक कर रहे हो? बाबा नाग देव पढ़ावा ऐसा नहीं होता भाई, लेकिन ये कि फॉलो कितना करते हो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो एक सवाल ट्राई करो बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों, ये H2SO4 इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किंग ऑफ केमिकल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं? तो H2SO4 सॉल्यूशन है हमारे पास, H2SO4 का हमारे पास सॉल्यूशन है, इट इज़ 0.8 मोलर and we have taken 5 liters, so 0.8 molar and 5 liters. You have to calculate moles of H plus, and you have to calculate mass of sulfuric acid. Just do it बच्चों, do it in 60 seconds, 60 सेकेंड के अंदर कर डालो। या कम ऑन, your time starts now. H2SO4 solution we have 0.8 molar and 5 liter. So you have to calculate moles of H plus and mass of H2SO4. Just do it. Mass of sulfur 32, atomic mass of sulfur is 32. अर्नब थोड़ा पढ़ा करो घर पे बेटा, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बाबू। गुड हनु, बहुत अच्छे। फाइव 4 3 2 1 0, टाइम इज ओवर बच्चों। और आप लोगों ने अपना आंसर यहाँ बहुत सारे लोगों ने प्लेस कर दिया, बहुत बढ़िया। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ H प्लस। सो 1 H2SO4 विल गिव 2 मोल्स ऑफ H प्लस, है ना? हैव यू कंसिडर्ड इट? ओके, सो 1 मोल
of H2SO4 will give 2 moles of H plus. So moles of H plus will be twice of this one, and that's molarity into volume. 5 वाट 40 और 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 आंसर आ गया। समझ गए? एक सल्फ्यूरिक एसिड 2 H प्लस दे रहा है बच्चों, एक सल्फ्यूरिक एसिड 2 H प्लस दे रहा है, तो ये कितना मोल हुआ? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 4 मोल हुआ। इसका दोगुना कर लो ना, 1 से 2 मिलता है तो 4 से 8 मिलेगा। तो आपने सही किया है। ज्योति प्रभा ने गलत कर दिया, बिटिया 4 नहीं 8 होगा। वो H2SO4 का मोल बता रही है। अरे बिटिया ये देखो H प्लस का मोल पूछा जा रहा है, सवाल ठीक से पढ़ना है। तेजस ने सही किया है, बहुत लोगों ने सही किया है। नाउ मास ऑफ H2SO4, H2SO कितना मोल है? H2SO 4 मोल है। 1 मोल का मास 98, 4 मोल का मोल 4 इंटू 98, 4 बटे 32, 2 3 और 4 9 36 और 3 39, इतना ग्राम हो गया। इज दैट गुड? सो आई थिंक आपको समझ में बात आ गई है आप सभी लोगों को। देखो अर्नब कह रहा है मास याद नहीं होता है। याद नहीं करना होता है। अपने पापा का नाम याद किए थे क्या? अपने मामा का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, प्रदेश का नाम, मेरा नाम, दोस्तों का नाम याद किए थे क्या? नहीं 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 नहीं, समय बिताए थे, इंटरेस्ट लिए थे, है ना। अपना अच्छा यूज करने के लिए समझना ज़रूरी है कि हम कैसे चीज़ों को सीखें। तो इंटरेस्ट जनरेट करो, अपने आप याद हो जाएगा। अभी आज हिंदी दिवस है। मैं बताऊं आपको, मैं भी कल रात को हिंदी में मैंने एक कहानी लिखी। तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और हिंदी हमारे दिमाग के अंदर, मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल ही लेता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी के साथ महसूस करता हूँ। जब हिंदी बोलता हूँ मतलब कोई मेरी हृदय की चीज़ बोली जा रही है, समझ लो। मैं उस चीज़ को, मैंगो बोलने से ठीक है बट उतना मीठा नहीं लगता, आम बोलने से लगता है कि मीठा कुछ है। मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं भी कल एक कहानी लिखा हूँ, मैं कविताएं भी लिखता हूँ। मैंने एक उपन्यास लिखा है, उसका नाम है प्रेरणा। और बहुत सारे मैंने और चीज़ें, यात्रा वृत्तांत और बहुत सारे हास्य व्यंग लिखा। मुझे बहुत ही शौक़ है इन चीज़ों का। तो मैं वही प्रैक्टिस की बातें कर रहा था कि हिंदी हम लोग बचपन से ही फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मतलब माँ बाबूजी कैसे, मैं अपने बाबूजी कहता हूँ, पापा नहीं कहता। तो मुझे लगता है कि पापा कैसे बोल सकता है, तो वो मेरे हैबिट में आ गया ना। ऐसी चीज़ें होती हैं, आप जब करते हैं प्रैक्टिस तो आपको हो जाता है। तो चलिए, आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। कई लोग इंग्लिश को घृणा के रूप में हिंदी को प्यार करते हैं। नहीं यार, हिंदी का बहुत विशाल रूप है। हिंदी को प्यार करने के लिए किसी को घृणा करने की जरूरत नहीं है। और हिंदी कम से कम हमको ये नहीं सिखाती है। हम लोग इंग्लिश क्यों सीखते हैं? बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो दुनिया में जाके हम धमाका मचाएं, दुनिया के लोगों को बताएं कि हम भारतीय लोग कैसे हैं, तो इसलिए वो हमको सुने तो कम्युनिकेशन तो हो पाए। और दैट्स वाई वी शुड नो इंग्लिश। आई मीन, लेकिन ये हिंदी के बिहाफ पर नहीं है। इट्स नॉट कि कोई पूछे कि आप हिंदी सीखना चाहते हैं कि हिंदी सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश। अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई। किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो गड़बड़ है, जानना ज़रूरी है। बट हिंदी नहीं आती है तो उसके अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। ये शर्म की बात है कि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत देश में हिंदी नहीं आती है। दैट एकदम क्लिष्ट और स्पष्ट हिंदी बोलता हूँ मैं, यह बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में। हाँ, तो लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आई एम नॉट डूइंग द सेम। ठीक है बच्चों, चलिए। अब ये कोई कह रहा है, सवाल फिर से बता दीजिए। अरे बच्चों, 1 मोल H2SO4 में 2 मोल H प्लस मिलेगा। H2SO4 हमारे पास 4 मोल है तो ये 8 मोल हो गया। मास निकालना है, गुणा कर दिया। चलो, है ना अर्पित? चलिए अब ये सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। सवाल बनाओ तो। टाइम है आपके पास कुल, कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी dissolved in water in order to prepare 500 ml solution of 101 molarity concentration। ठीक है, ये सवाल आप लोग ट्राई कीजिए। और टाइम है आपके पास कुल 45 सेकंड्स का, या 1 मिनट ले लो, 1 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या हुआ? Na2CO3। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, राइट।
हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी डिजॉल्व्ड इन वाटर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 500 ml solution of 0.01 molarity concentration? Just do it फटाफट, and after doing this you place your answer, or you can say have done. हो गया सर. कम ऑन भैया और दीदी लोग, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? ले, हनु ने आंसर फेंक दिया. चल भाई, बहुत बढ़िया हनु. इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं. कितना आएगा? 23 × 2 और CO3 का 60 होता है, तो 46 और 60 कितना हो गया? 106. 106 मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3 हो गया. देखो यहाँ से मामला क्लियर हो गया. नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हमें निकालना है कितना ग्राम, बच्चों लोग ध्यान सुना रहे, कितना ग्राम चाहिए. मैं कहूँ कि इतना गुलाब जामुन बनाना है, कि एक गुलाब जामुन बनाने में मान लो 20 ग्राम चीनी लगती है. बड़ा ध्यान सुनना रे, एक गुलाब जामुन बनाने में 20 ग्राम चीनी लगती है. कहें हमको 500 गुलाब जामुन बनाना है, कितना चीनी लगेगा? क्या करेगा? गुणा कर देगा. तो वैसे ही हमको सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास पता है 106. तो कह रहा है कि हमको 500 ml इस मोलरिटी का सॉल्यूशन चाहिए. तो कितना ग्राम चाहिए? अरे पहले मोल्स निकाल लो कि कितना मोल्स आपको सोडियम कार्बोनेट चाहिए. कैसे? मोलरिटी वॉल्यूम. मोलरिटी है 0.01 एंड वॉल्यूम है बच्चों आधा लीटर है यार, 1/2. तो कितना मोल आया? 0.0025. इतना मोल्स आ गया. बोलो है कि नहीं भाई? हमसे कह रहा है कि एक सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन हो जिसमें 0.01 मोलरिटी 500 ml सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का हो. तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल निकल गया. हमें इतना मोल सोडियम कार्बोनेट चाहिए, तो 1 मोल का मास इतना है, तो इतने मोल कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, तो मास बताओ, तो मास कहेंगे 106 ग्राम. तो 1 मोल का है, हमें 0.005 इतना ग्राम चाहिए. नहीं कर लोगे बच्चों? गुणा कर लो यार. 5 × 6 = 30 एंड 5 × 1 = 5 और ये 3 स्थान पे 0.530 ग्राम इतना चाहिए. अरे पॉइंट, अरे देखो कई ठोक बदमाश है ये सब. तुम ध्यान नहीं देते हो, ये गलती यहाँ किया करो, परीक्षा में नहीं. ये 500 मिलीलीटर है, लीटर नहीं. कौन है वो? ये दिव्या चौधरी, दीदी जी, अर्नव, शेखर, ये सब देखो 530 ग्राम लिखा है. काहे? इसको लीटर मान लिया है. अरे भाई वो मिलीलीटर है. हैं? देखो उज्ज्वलवा भी यही गलती कर रहा है. बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को हम, समझ रहे हो? सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है. ये मिलीलीटर है. तो मान लो यही काम एग्जामिनेशन में करोगे जहां तुम्हें 4 नंबर मिलना चाहिए, जिससे कि तुम IIT और मेडिकल कैसे कॉलेज चले जाओगे, वहां तुम्हें मिलेगा -1 नंबर. मतलब तुम्हें कितने का चूना लगा है? 5 नंबर का. गुड, ध्यान देना है. चलिए कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. डेंसिटी ऑफ 2.03. मैं खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. बहुत अच्छे ज्योति, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलरिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस वन. That's a density of solution of acetic acid. Now molecular mass of acetic acid is given to us. You know acetic acid CH3COOH. Its molecular mass is 60. So calculate the molality of the solution. Oh, it's too easy. We have given molarity and density and have to calculate molality. सोचो सोचो सोचो. चलो भाई, टाइम है आपके पास 1 मिनट का. आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? मोलरिटी दिया है और डेंसिटी दिया है, मोलिकुलर मास ऑब्वियसली. सो वी हैव टू कैलकुलेट मोलरिटी. टाइम स्टार्ट्स नाउ. कम ऑन एवरीवन. कम ऑन भाई, 60 सेकेंड्स है आपके पास.
जल्दी 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 जल्दी। बातचीत, बिना मतलब की बातचीत मत किया करो, फालतू बातों में टाइम वेस्ट मत करो। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। नहीं बना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार सीखना तो होता है, तो मैं आपको सिखाना भी तो है। बच्चों सुनो, ध्यान समझो, बहुत ध्यान से मेरी। पता है, अगर आप टीचर की बात को बहुत ध्यान से, उसके इंटोनेशन, डू यू नो इंटोनेशन मीन्स शब्दों को उतार चढ़ाव बहुत ध्यान सुनते हो ना, तो वो उसका तरीका आपका तरीका हो जाता है, फिर आपसे गलती नहीं होगी। चलिए ध्यान सुनते हम लोग। 2.03 मोलरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन फॉर, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में 2.03 मोल्स सॉल्यूट है, मोल्स सॉल्यूट है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? क्या कह रहा है? 2.03 मोलरिटी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, पचाना उसको, है ना। 2.03 मोलरिटी मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में 2.03 मोल है, तो इतना मोल सॉल्यूट है, इतना मोल सॉल्यूशन है। अब देखो, सॉल्यूट का मोल मालूम है, तो इसके अगर मॉलिक्यूलर मास से गुणा कर दें तो सॉल्यूट का मास निकल जाए कि नहीं, हमको ये बता दो। कहाँ मास निकलेगा? 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है निकल जाएगा। कैसे? ये 2.03 मोल है और 1 मोल का मास 60 है, गुणा कर दो, इतना ग्राम सॉल्यूट है इस सॉल्यूशन में। अच्छा, ये डेंसिटी कहाँ दिया है? देखो डेंसिटी दिया है हमको 1.017 ग्राम पर ml। बहुत ध्यान सुनना रे बच्चों। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, जैसे पढ़ूं वैसे तुम्हें पढ़ना है, तबे मजा आएगा। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में इतना ग्राम होता है, तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन इतना ग्राम होता है, तो 1000 मिलीलीटर कितना ग्राम होगा? 1017 ग्राम। व्हाट इज दिस? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज मास ऑफ सोल्यूट। अगर घटा देते हैं हम लोग तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ जाएगा, है? कैसे? तो बड़ा मजेदार है। इट्स नथिंग बट, दिस वन इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस वन इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूशन कंप्राइजेज ऑफ solute and solvent. Since we know the mass of solution, we know the mass, we have calculated mass of solute, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे and we get the mass of solvent। अब तो काम हो गया ना यार, सॉल्वेंट का मास ग्राम में पा गए। कौन सा सॉल्वेंट? उस सॉल्वेंट का मास पाए हो जिसमें इतना मोल सॉल्यूट है। कहोगे इतने ग्राम सॉल्वेंट में 2.03 मोल सॉल्यूट है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा? आहा, कितना आसान है ना। मज़ा आया? एक बार और रिपीट मार दूं मैं। चलिए एक बार फिर रिपीट मारता हूं और फिर सवाल बनाएंगे हम लोग। इसे समझ में आया? पहले थोड़ा फीडबैक दो मुझे, समझ में आया आप लोगों? जल्दी जल्दी बताओ, मैं जो भी बताया इस सवाल को बनाने का तरीका समझ में आया कि नहीं? कमान कमान जल्दी बताओ मुझे, कमान एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। अमन, हनु, शिवानी, वंशिका, आज़म, दिव्या, भारत, समझ में आ गया? गुड। कोई रिपीट क्यों करना है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। वंस अगेन अश्विनी, बहुत बढ़िया, आई विल डू। ठीक, तो मैक्सिमम लोगों को, अर्पित को क्रिस्टल क्लियर हो गया। वंस अगेन है, अश्विन को, कुछ दोस्तों को इनके मैं करता हूँ। ठीक है, एक बार और हम लोग बातें कर लेते हैं। बहुत ध्यान सुनना अश्विन और आपके सभी लोग जिनको कम समझ में आया और जिनको आगे वही फोकस करेंगे। सवाल में हमको मोलरिटी दिया हुआ है। मोलरिटी मतलब कितना मोल सोल्यूट है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो 1000 ml सोल्यूशन में इतना मोल सोल्यूट है। तो अगर हमको सोल्यूशन का मास निकल जाए, अच्छा हम चाहते क्या है?
हम चाहते हैं ये पता करना कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास क्या है। क्यों पता करना चाहते हैं? क्योंकि हमसे मोलैलिटी पूछा गया है। तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा, कहेंगे इतने सॉल्वेंट में इतना मोल सोल्यूट है तो 1000 ग्राम में कितना होगा, वही तो आंसर होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा पूरा अटेंशन इस बात को लेके है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट। भैया सोल्यूट का मोल पता है, मोल पता है, मास मोलिकुलर मास का सोल्यूट का मोल निकल गया ना। सोल्यूट का हमें मोल पता है, मास निकल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का मास निकल गया। सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास घटा दो, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यही तो खोज रहे थे। क्यों भाई हैं? सोल्यूट का मोल पता है तो मास निकल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है तो मास निकल गया। मास माइनस मास करेंगे तो सॉल्वेंट का मास आएगा। सॉल्वेंट के इतने ग्राम में इतना मोल है तो 1000 ग्राम में कितना होगा। अब बताओ रुद्र प्रताप, समझ में आया? अश्विनी बेटा समझ में आया? आइडिया बिल्डअप करना, दिमागदार तुम लोग हो ही यार, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, सवाल सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग कहेंगे भाई सॉल्वेंट का मास बताओ। सॉल्वेंट है 1017 ग्राम, सॉरी सॉल्यूशन का मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू तो ये कितना हुआ, ये 2.03 मोल है इंटू 60 करना है। तो 60 कर दिया, 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ये हो गया इतना, है ना 121.8। सो ये 121.8 ये क्या बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन। घटा दो, 10 में से 8 गया 2, और ये 6 में से 1 गया 5, और ये 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 1 गया 9। तो 985.2 इतना ग्राम सॉल्वेंट में 2.03 मोल सोल्यूट है। सो 1000 ग्राम में कितना होगा, 2.03 बाई 985.2 इंटू 1000। और ये क्या हो गया, हमने क्या निकाला यार, हमने ये निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट है। ये तो मोलैलिटी होती है, वही तो पूछा गया है। क्लियर? यस क्लियर नाउ एवरीवन। वाओ, पता है ये आपको आसान लग रहा है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत तेज हो, बहुत अनुशासित हो। द बेस्ट थिंग इज दैट। लेकिन ये चीज़ें आसान नहीं होती है। बच्चे मार टकाटक क्या करते रहते हैं, क्या कुछ कल गलत कर दिया हो क्या मैं? हाँ यार ठीक है 885 हो जाएगा, है ना, गुड। तो बच्चे जो है टका फार्मूला याद करते रहते हैं, है ना अनु, थैंक यू। बच्चे जो है फार्मूला याद करते रहते हैं, तो आप तेज हो इसलिए आपको समझ में आ जा रहा है, बट इसको जल्दी से इसको कैप्चर कर लो, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाए, जैसे एक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए, कई बार ऐसा होता है ना, शादी उदी में जाते हैं हम लोग, आजकल तो यार गजब ही सिस्टम हो गया। पहले क्या था, शादी में लोग दूसरों को खिला के तब खाते थे, वेट करते थे कि किसी कम न पड़े। अब तो कहते हैं यार बारात आ ही रही है ना, मेरे जाने से क्या होगा, पहले जाके अटैक करते हैं खाने पीने पर, है ना। तो कई बार मान लो अगर तुम दूल्हे के या दुल्हन के दोस्त हो, भाई हो तो या रिलेटिव हो, तो भाई तुम्हें ज़्यादा केयर करना है। अब तुम खाने लेट पहुँचे तो मालूम चला कि सब्जी में पहले पनीर था सब्जी में पहले पनीर था, अब उसको डाइल्यूट कर दिए सब। अब पनीर जो है लकी ड्रॉ में निकल रहा है। तुम्हारा दोस्त बताया कि अभी मुझे सब पनीर मिला है, क्या मिला है क्या तुमको, मतलब लाइक दैट यू नो। तो ऐसे हो जाती चीज़ें। तो क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ, एक सब्जी जो है एक सॉल्यूशन है काइंड ऑफ, और उसमें जो है डाइल्यूट कर दिया गया। वही बिकॉज लोग बढ़ गए, खाना कम पड़ गया, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अब लकी ड्रॉ में पनीर निकल रहा है। आर यू गेटिंग? तो ऐसे हम 2 सॉल्यूशंस को मिलाएं, या कई बार ऐसा होता है कि चाय बना तो एक चाय ज़्यादा मीठा हो गया तो उसमें हल्का सा दूध मिला देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं। यस,
ऐसा कर देते हैं। तो दो चीज़ों को मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों तुम ये समझो कि मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम और वॉल्यूम मिलके जुड़ जाएगा, मास और मास मिलके जुड़ जाएगा। अगर दो सॉल्यूशन को हम मिक्सअप करते हैं तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम V1 प्लस V2 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होगा, मोल्स N1 प्लस N2 इज इक्वल टू फाइनल मोल होगा, मास M1 प्लस M2 इज इक्वल टू फाइनल मास हो जाएगा। लेकिन मोलरिटी M1 प्लस M2 इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी नहीं होता। मोलरिटी भी फाइनल ऐसे जोड़ नहीं सकते, मतलब इसको नहीं कर सकते, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। डेंसिटी ऐसे, ध्यान रखो, मोलरिटी को डेंसिटी को परसेंटेज वेट बाय वेट को, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को, इन सब चीज़ों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते बच्चों। और इसको हम लोग क्यों नहीं जोड़ सकते, ये आपको थर्मो में आगे पढ़ाएंगे हम। अभी आपको सिर्फ ये गाइड कर रहा हूँ मैं। इनको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कर देता हूँ, प्लूरल है, ओके। तो दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग जोड़ नहीं सकते, ये इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके। सो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग जोड़ सकते हैं, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या बताया, अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो क्या क्या मिल जाता है, पता है। लोग कहते हैं, एक इंग्लिश में शब्द है बच्चों, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच, इसका मतलब ये होता है कि जब हम जुड़ते हैं, किसी चीज़ को जोड़ते हैं, परिवार जुड़ता है, मान लो 4 लोग परिवार में हैं, तो 4 लोग जुड़ते हैं तो 1 2 3 4 मिलके उनकी क्षमताएं 4 गुना नहीं होती हैं, कहते हो कई गुना हो जाती हैं। इट्स अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ मैथमेटिकल अलजेब्रा, यू नो। तो ये है बच्चों, अप्रोच ऐसे होता है। ये जब परिवार टूटता है तो सिर्फ चीज़ें आधी नहीं होती हैं, बल्कि आधे से भी कम हो जाती है, मनोबल गिर जाता है, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते। दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं बच्चों, तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी, जो मास वॉल्यूम नंबर पे डिपेंड करती हैं, उनको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन डेंसिटी को, जितने भी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं, जितनी भी हैं स्ट्रेंथ वाली चीज़ें, मोल फ्रैक्शन, ppm, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब मोल को जोड़ सकते हैं। मोल स्ट्रेंथ नहीं है, मोल नंबर है। तो मोल जोड़ सकते हैं, मास जोड़ सकते हैं, वॉल्यूम जोड़ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मज़ा आएगा आपको। चलिए, मज़े लेने में कोई बुराई नहीं है, मज़ा तो हमारा हम लोगों का परम धर्म है। चलिए भाई, ये बाल्टी लेके आओ, ये बाल्टी लेके आ गया, है ना। ये देखो बाल्टी है, इसे पकड़ने वाला है इसका ठीक है। अब इसमें जो है ये देखो, दूध को मैं इस रंग से दिखाता हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं दूध, ये दूध है। जानते हो दूध प्योर कब होता है, जब उसमें उतना पानी मिला देते हैं सब नहीं, तो हमारे यहाँ तो कई लोग, हम ज़िंदगी में कभी प्योर दूध पिए ही नहीं है। कई लोग, मतलब शहर में, मैं तो गांव से हूँ, अक्खड़ जंगल से मेरा घर था, जंगल गांव में था। जैसे बोला कि मैं बहुत दिनों से बनारस रह रहा हूँ, तो वो पूरी ज़िंदगी भर कभी शुद्ध दूध पिए ही नहीं, और शुद्ध दूध पिला दोगे तो उनका लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तो बाय द वे, यहाँ ध्यान समझो, ये प्योर दूध है बच्चों, राइट। अब प्योर दूध में फार्मूला क्या है, जितना दूध है उतना पानी मिलाया जाता है, उतना पानी मिला दिया, ठीक है। तो मान लो दूध का, मिल्क का वॉल्यूम है मान लो 1 लीटर, तो पानी कितना मिलाते हैं, 1 लीटर, ठीक है। तो अच्छा, मान लो दूध का जो डेंसिटी है बच्चों वो है 1.02 ग्राम पर ml, और पानी का डेंसिटी कितना होता है, 1.0 ग्राम पर ml, ओके। ये हुआ कमाल की बात, वो ध्यान समझना। अगर इनमें क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं, क्या नहीं जुड़ सकती, देखो अब ये टोटल जो होगा इसमें वॉल्यूम कितना होगा, कहें आपने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया, तो अब कुल 2 लीटर हो गया, नहीं
अच्छा, दूध कितना महान है ना कि दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो दूध हो जाता है, वो पनियों में दूध हो जाता है बाय द वे। तो 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया, कुल सॉल्यूशन कितना हो गया 2 लीटर। डेंसिटी कितना हो जाएगा, क्या डेंसिटी 1.02 दूध का है और प्लस 1 डेंसिटी पानी का है, तो हो जाएगा 2.02 ग्राम पर ml। ऐसा होगा क्या बच्चों, जरा सोच के बताओ तो। मतलब तुम दूध में पानी मिलाओगे तो दूध व डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब दूध थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या कि दूध में पानी मिलाया तो दूध मोटा हो गया, मलाई निकलना शुरू हो गया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जल्दी जल्दी बोलना है भाई फटाफट कि ऐसा होता है क्या दूध में। तो क्या हम डेंसिटी को जोड़ सकते हैं? कैन वी ऐड डेंसिटी? नो। क्यों पूछे वाई? या शिवानी, भारत, वेरी गुड, अमन, हाँ रिस्पॉन्स करते रहो। we could not apply mathematical algebra on intensive properties। so मेरी बात समझ गए होगे आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अनन्य एंड ऑल, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों, अच्छे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग 2 सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो क्या क्या होगा, समझ गए आप लोग। तो अब इस बेस पे सवाल ट्राई करना है। थैंक यू बच्चों, आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग कि डेंसिटी को हम लोग जोड़ नहीं सकते। कि क्यों? इट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या डेंसिटी कभी निकाल ही नहीं सकते? क्या पगला गए हो क्या? डेंसिटी क्या होता है? कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, तो टोटल सोल्यूशन का मास निकाल लो। कैसे? क्या दोनों का मास जोड़ दो। क्या अच्छा, जोड़ दिया। क्या दोनों का वॉल्यूम भी जोड़ दो, क्या वो भी जोड़ लिया, और डिवाइड कर दो। अच्छा, so can we calculate density of the solution? Yes, obviously, but not just by adding the density of two parts। उन दोनों पार्ट्स के डेंसिटी को ऐड करके नहीं, बट बाय हैविंग कैलकुलेशन। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर मैथमेटिकल अलजेब्रा लगा करके हम इंटेंसिव की वैल्यू को बड़े आराम से, सहजता से निकाल सकते हैं। यस, गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये एक शानदार कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। और पता है जेई में, नीट में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नीट 2018 में आया था, उसमें लिखा था मोलरिटी इंटेंसिव है, और 4 तो बकवास किया था। मतलब 4 ऑप्शन में 3 बकवास था, एक लिखा था मोलरिटी इंटेंसिव है। आपने बस एक चीज़ जान लिया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। हम लोग मस्ती में सीख लिए यार, खत्म बात। अब 2 एसिड मिलाओगे। अब भाई ऐसा है ना चीनी में, शरबत में और मीठा डालोगे तो मिठास बढ़ेगा ही, नींबू डालोगे तो घटेगा। अब एसिड मिलाओगे तो दोनों H+H+ जुड़ जाएंगे, जितने भी H+ होंगे। और एक एसिड और एक बेस मिलाओगे तो तुम्हें पता है ना कि H+ और OH- एक दूसरे को खा जाते हैं। H+ और OH- एक दूसरे को खा जाते हैं और क्या बनाते हैं? H2O। तो अब जितना H+ होगा उतना ही OH- होगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब जो ज़्यादा होगा वो बच जाएगा। मान लो मैंने 10 मिलाया और इसको मैंने 8 मिलाया, तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18। पगला गया होगा। चूहा और बिल्ली एक पिंजरे में रखोगे तो दोनों, मतलब एक बिल्ली और एक चूहा मिलाया तो कुल एक ही बचेगा, चूहा बिल्ली के पेट के अंदर चला जाएगा नहीं बात समझ रहे हो ना। तो 10 H+ और 8 OH- है, तो 8 इसके 8 को खा गया और 2 H+ बच जाएगा। बात समझे आप लोग। तो अगर एसिड्स मिलाएंगे तो H+H+ जोड़ देंगे, एसिड बेस मिलाएंगे तो H+ और OH- देखेंगे कौन कैसे कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। और बेस मिलाएंगे तो अगेन ऐड कर लेंगे। चलिए एक सवाल ट्राई करिए, एक हम लोग मस्ती भरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अरे यार ये अटक गया। एक क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। ये H2SO4 का 2 सॉल्यूशन है, और वन इज 0.2 मोलर एंड 2 लीटर, अनदर वन इज 0.4 मोलर एंड 3 लीटर। मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ भाई अमित जी, आना बेटा एक बार। बच्चों दीज आर 2 सॉल्यूशन एंड हम इनको मिक्सअप कर रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड द मोलरिटी। मैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ये मिट नहीं रहा है। फाइंड द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन।
थोड़ा बच्चों कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, तो 1 मिनट 10 सेकंड में सही हो जाएगा अभी, जस्ट 10 सेकेंड्स। ओके, नाउ इट्स ओके। ओहो शिवानी दीदी, मोनिका, बहुत बढ़िया, अर्नव बहुत ही अच्छे, क्या बात है, मज़ा आ गया। इतना बढ़िया तुम लोग सीखते हो कि तुम लोगों को तो मतलब तुम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं, टॉप करोगे भाई। सो हियर वी हैव, चलो यार टाइम नहीं दिया तुमको, मुझसे बिजी थे। 30 सेकेंड्स में अभी दे देता हूँ। ओके, 30 सेकेंड्स फ्रॉम राइट नाउ, टाइम स्टार्ट्स। So we have given 2 solutions and we have to find the molarity of resulting solution. ओहो क्या बात है, सब लोग सीख गए इस बात को। 5 4 3 2 1 एंड 0। बच्चों जानते हो, ये जानना कि मास को जोड़ दो, वॉल्यूम जोड़ दो, मोल्स जोड़ लो, ये तो ठीक बात है, ये बहुत ही लॉजिकल, मतलब ठीक है, इट्स वेरी कैजुअल। बट ये जानना कि बिकॉज दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो मैथमेटिकल अलजेब्रा विल बी अप्लीकेबल ऑन दोज क्वांटिटीज, दोज पैरामीटर्स, ये खूबसूरत बात है। डेंसिटी नहीं जोड़ सकते बिकॉज इट्स इंटेंसिव। अगर आप ऐसी बातें करते हो ना तो आप पूरी भीड़ से अलग हो जाते हो। भीड़ नहीं बताऊँ मैं आपको, बहुत सारे टीचर्स को ये सब बात पता नहीं है। कैसे, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्या नहीं जोड़ना होता है, क्यों, कि मैं बोल दिया नहीं जोड़ना होता है, बड़ी मार मारेंगे तुमको। बट यू नो इट्स अ वंडरफुल आइडिया। मैं नहीं बोला अपने टीचर को परेशान करो आप, मैं अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको भी यही सीख दे रहा हूँ। उनको, वो जैसे भी हैं आपके टीचर हैं, यू शुड रिस्पेक्ट हिम। सो बाय द वे, तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यू एवरी टाइम ट्राई टू थिंक कि नाग सर से पढ़ रहे हैं तो व्हाट डिफरेंट, मैं क्या नया तरीका सीख रहा हूँ। हम लोग मोलरिटी का फार्मूला नहीं याद कर रहे हैं, मोलरिटी का फार्मूला नहीं याद कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला नहीं याद कर रहे हैं, मोलरिटी दिया मोलरिटी निकालना, मोलरिटी दिया मोलरिटी निकालना, वेट बाय वेट, कुछ भी दिया। सो वी आर जस्ट डूइंग बाय द आइडिया, बाय द लॉजिक, नॉट बाय द फॉर्मूला। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। हम क्यों कर रहे हैं, वी शुड नो इट। नाउ अब हम देखो यहाँ पे हमको सॉल्व करना बच्चों, मैं क्या करूँगा, मेरे को मोलरिटी निकालना है। किसका निकालना है भाई, कहें ओवरऑल सोल्यूशन का। तो हमको ये पता कर लें कि ओवरऑल सोल्यूशन में कितना मोल है। हम अगर ये पता कर लें कि ओवरऑल सोल्यूशन में, कहाँ गया यार, हमें पता करें कि ओवरऑल सोल्यूशन में कितना मोल है और उसको हम वॉल्यूम से भागने काम हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम को जोड़ सकते हैं। टोटल वॉल्यूम इज 5 लीटर। टोटल मोल कितना होगा, इसका मोल देख लो, इसका मोल क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.4, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.4, मतलब इस सॉल्यूशन में 0.4 मोल्स H2SO4 है। इस सॉल्यूशन में 0.4 मोल्स H2SO4 है। और इसमें कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में 4 3 12 1.2 हो जाएगा। तो हम दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, एक में 0.4 मोल H2SO4 है, एक में 1.2। तो टोटल मोल कितना हुआ, यस वी कैन ऐड मोल्स बिकॉज मोल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 1.2 इंटू 1.6 हो जाएगा। ओके, 1.2 एंड प्लस 0.4। टोटल वॉल्यूम इज 5 लीटर, डिवाइड कर दिया हमने, मोलरिटी आ गया। कितना आसान है, नहीं? आंसर हमको लगा सारे बच्चों ने सही किया है। तो ये 0.5 3 15 और 5 दूनी 10, इतना मोलरिटी हो जाएगा, 0.32। सबने सही किया, आसान है ना? वाह, चलिए और सवाल ट्राई करते हैं, कम ऑन। नाउ here we have given 2 solutions. One is NaOH, it's a base. Another one is also a base, calcium hydroxide. It's a weight by weight 8%, weight by weight 1 kg, 15% weight by weight 2 kg. We have to calculate molarity of OH minus in resulting solution. Molarity, मेरे पास किसी क्लास है क्या? तो 5 मिनट लेते। Molarity of OH minus in resulting solution. तो आप हमेशा सोचा करो कि मुझे क्या दिया है और क्या निकालना है, उधर से फिर अटैक करो, देखो कितना मज़ा आता है। सवाल बनना एक बात है, आपका जो थॉट डेवलप होगा ना वो गजब का होगा। गजब मतलब आप किताब लिखने की स्थिति में आ जाओगे, शानदार होगा, मज़ा आ जाएगा। चलो मैं टाइम देता हूँ आपको 1 मिनट का। और पता है ये इससे फास्ट तरीका कोई नहीं देता।
फार्मूला बेकार तरीका, ये सबसे फास्ट तरीका है। 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ OH माइनस इन रिजल्टिंग सोल्यूशन, सॉरी मोलरिटी नॉट मोलरिटी, कम ऑन। कम ऑन बच्चों, कम ऑन। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। नाउ टाइम इज़ ओवर। सो आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ। सवाल बनाना वो कलाकारी नहीं है, सोच कलाकारी है। वो सोच आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा पहुँचाएगी। शुरू किया जाए, चलिए। ठीक है विभा, बहुत अच्छी बिटिया। तुम लोग ये मैं क्या बताऊँ, ये ऑनलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा हो गया कि बच्चों को हम सिर्फ नाम से जान रहे हैं, चेहरे से नहीं, है ना। बट चलिए, वी विल मीट आफ्टर लॉकडाउन और चीज़ें अच्छी होंगी तो, और तुम लोग तो अच्छा करोगे तो डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए, NaOH 8% वेट बाई वेट 1 kg, वी हैव टू कैलकुलेट मोलरिटी, मतलब कितना मोल है। अच्छा, इसमें ध्यान समझना, ये कितना है, 1000 ग्राम है क्या सॉल्यूशन। ये कितना है, 2000 ग्राम है क्या सॉल्यूशन। मैं ग्राम की बातें क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ में 100 ग्राम में 8 ग्राम है। अच्छा, वो ध्यान इतना मज़ेदार है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 8 ग्राम NaOH है, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 80 ग्राम NaOH हो जाएगा। ये देखो, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम NaOH है, तो 1000 में कितना होगा, 150 ग्राम। 2000 में कितना होगा, 300 ग्राम NaOH होगा। ये हम मास किसका निकाल रहे हैं, NaOH का। बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो और मजे लो। पता है अरे इतना आसान था क्या, अरे बाप रे बाप। कई लोग इसको लेके 2-4 टोप पन्ना भर देंगे, बट सिंस हमारा अप्रोच अलग है। अब वो अप्रोच बहुत ही बेसिक अप्रोच है। लेट्स सी, ये 1 किलोग्राम सॉल्यूशन है, तो ये 1000 ग्राम हो गया। अरे किलोग्राम सभी जानते हैं, तो 100। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, बिकॉज सॉल्यूशन में तुम्हें पता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 8 ग्राम NaOH है। सो 1000 में 80 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम है ना। सो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो 100 कितना हुआ ये, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। 100 ग्राम में 15 ग्राम, तो 1000 ग्राम में 150 ग्राम, 2000 ग्राम में 300 ग्राम। ये 80 ग्राम NaOH है। वाह वाह वाह। ये 300 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बोलो। अच्छा, यहाँ से हमें OH माइनस का मोल निकल जाएगा। क्यों, जितना मोल NaOH होगा उतना ही मोल होगा। NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चों, 40 होता है, मालूम है आपको, 40। इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड किया हमने, कितना आया, 2 मोल्स ऑफ NaOH। और तो OH माइनस कितना मोल होगा, इसमें 2 मोल्स OH माइनस है। समझ गए ना कैसे हुआ ये सब। 1000 ग्राम में इतना ग्राम NaOH है, इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड किया तो 2 मोल आया। NaOH के 1 मोल में 1 OH माइनस, तो डेफिनेटली 2 मोल में 2 ही हो जाएगा। यहाँ आते हैं, वैसे में इसका मोल निकालेंगे बच्चों। इसके 1 मोल में 2 OH माइनस है, तो जितना मोल होगा उसके 2 गुना OH माइनस हो जाएगा। बोलो यस नो। तो OH माइनस का मोल निकल गया, जोड़ दोगे तो OH में टोटल मोल आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, मोलिकुलर मास से इसके डिवाइड करेंगे और जितना है उस 2 से गुणा कर देंगे। बिकॉज Y2 से इसके 1 मोल में 2 OH माइनस, जितना उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो OH माइनस का मोल्स आ गया। ठीक है, नाउ अब देखो भैया, बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान सुनो। 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट होगा 920 ग्राम। बोलो यस नो, बोले पगला, सभी लोग बोलो 920 ग्राम्स। गाँव वालों क्या हुआ, 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaOH है।
सॉल्यूशन और सोल्यूट, सॉल्वेंट कितना हुआ, इतना हुआ, तो इसमें सॉल्वेंट का मास आ गया। वैसे ही सॉल्वेंट 2000 ग्राम सॉल्यूशन में 300 ग्राम सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 1700 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, सॉल्वेंट का मास निकल गया और OH माइनस का मोल निकल गया। इतने ग्राम सॉल्वेंट में इतना मोल सोल्यूट है, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, मोलल्टी आ जाएगा। क्या भाई मज़ा आया नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को मोलल्टी निकालना? सभी लोग बताओ फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, समझ आया कि नहीं? कम ऑन, रिस्पॉन्स मी वेरी सून। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया या नहीं? एवरीवन कम ऑन, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड मी। रिपीट करता हूँ अनु, ओके गुड। उज्जवल समझ आ गया आपको, सुष्मिता, शिवांगी रिपीट करना है, वेरी नाइस। अनन्य समझ गए हैं, हिमांशु को बताना है, ठीक है मैं फिर से बताता हूँ, ओके आई एम डूइंग वंस मोर, है ना। एक गाना सुनोगे तुमको मैं, थोड़ा इजी हो जाओ तुम लोग। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। चलो अब शायद तुम लोग को अब समझ में आएगा नहीं, अब मतलब थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया, थोड़ा गाना गाना हो गया यार, मस्ती वस्ती हो गई, अब जल्दी समझ में आएगा, है ना। मैं जब भी पढ़ के थक जाता है मैं गाना गाया था, आई जस्ट लव टू सिंग, बाथरूम सिंगर हूँ यार, बट यू नो अपने बच्चे भी तो अपने ही है ना, बहुत करीब हो तुम लोग। चलिए कम ऑन नाउ लेट्स सी, अब सीखते हैं हम लोग। ये हमारा आखिरी सवाल है आज के लिए, कंटेंट ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी चीज़ हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। देखो बच्चों, हम लोग क्या निकालना है, मोललिटी निकालना है, मोललिटी निकालना है। मोललिटी मतलब OH माइनस का फर्स्ट मोल निकालना है, मोल्स ऑफ OH माइनस बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और 1000 ग्राम में कितना होगा ये पता कर लेंगे। बोले यस नो, मास इन ग्राम कर लोगे तो हो जाएगा, है ना। इतने सॉल्वेंट में इतना मोल OH माइनस है, 1000 में कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके ओके, हमें मोललिटी निकालना है बच्चों। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, है ना। हमें मोललिटी निकालना है, तो इतना कितना मोल OH माइनस है इतने ग्राम सॉल्वेंट में, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा निकाल लेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए तो देखो भैया, यहाँ हम NaOH का मोल निकाल लें, तो NaOH जितना मोल है उतना मोल OH माइनस हो जाएगा। यहाँ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकाल लें, जितना मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा उसका डबल OH माइनस हो जाएगा। उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो OH माइनस का मोल आ गया। बोले यस नो। अब कैसे किया हमने, NaOH का मोल निकाल लिया, कैसे, 100 ग्राम में 8 ग्राम NaOH है, तो 1000 ग्राम में 80 ग्राम NaOH होगा। अब NaOH का मास आ गया तो मोल आ जाएगा, और जितना मोल NaOH होगा उतना ही मोल OH माइनस होगा। सिमिलरली इसके 100 ग्राम में 15 ग्राम है, तो 2000 ग्राम में 300 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 300 ग्राम से उसका मोल आ जाएगा, और मोल से दुगुना करो तो कैल्शियम OH माइनस, इसके एक में 2 OH माइनस है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जितना मोल होगा
उसके दोगुना मोल OH माइनस होगा। तो OH माइनस का मोल दोनों जोड़ दोगे तो OH माइनस का मोल आ गया, मोल्स ऑफ OH माइनस निकल गया। ठीक है, अच्छा सीख रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे यार, सॉल्यूशन 1000 ग्राम है और सॉल्वेंट 80 ग्राम है, सॉरी सॉल्यूशन 1000 ग्राम है एंड सोल्यूट 80 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास नहीं निकल गया। वैसे ही सॉल्यूशन और सोल्यूट के मास सॉल्वेंट का मास निकल गया, तो सॉल्वेंट का मास जोड़ दो, सोल्यूट का मास आ जाएगा। तो उतने सॉल्वेंट के मास में इतना मोल है, 1000 ग्राम में कितना होगा, कर लोगे ना? अब बताओ, ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई और सवाल ट्राई करते रहिए। ऐसे सवाल आपको बहुत सारे एग्जाम से मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करिए, NCERT ट्राई करिए, L1 एस्पायर के कंटेंट को ट्राई करिए, इंजीनियरिंग के बच्चे RC मुखर्जी, P बहादुर ट्राई करिए। मुझे भरोसा है कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। मैं तो आप लोगों को पढ़ाता हूँ 24 घंटे, आप लोग इतने प्यारे हो, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। और भूलिएगा नहीं, कमेंट देना कि ये क्लास कैसा लगा आपको, इस क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचनी ही चाहिए। जैसे आप सीख रहे हैं कि आपके बाकी दोस्त, भाई बहन, स्कूलमेट, क्लासमेट को सीखने का अधिकार नहीं है, तो क्या आप उसमें आप कुछ रोल प्ले करोगे? चलो फटाफट उनको शेयर करो कि तुम लोग भी जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, अपना ध्यान रखो, जय हिंद। कितने बच्चे थे इसमें? 44।